فیڈرل بورڈ آف ریونیو نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگا۔ ایف بی آر نے نان فائلرز پر متعدد پابندیاں متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے تاکہ اس مقصد کے لیے نان فائلر کیٹیگری کو ختم کر دیا جائے گا۔ نان فائلر کیٹیگری کو ختم کر دیا جائے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگا۔ ایف بی آر نے نان فائلرز پر متعدد پابندیاں متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے تاکہ ٹیکس بیس کو وسیع کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے نان فائلر کیٹیگری کو ختم کر دیا جائے گا۔ ملک میں نان فائلرز کے لیے بری خبر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے منظوری دے دی، جلد آرڈیننس لایا جائے گا۔ جو چھوٹے تاجر ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، کم آمدنی والے ہیں، ان کو ٹیکس کی چھوٹ ہے، ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ لیکن جو بڑے تاجر ہیں، بڑی آمدنی والے لوگ ہیں، جن کے کروڑوں روپے، ملینز بلینز بینک اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس لگژریس گاڑیاں ہیں، جن کے پاس بنگلے ہیں، جن کے پاس پلازے ہیں، تو ان کو ٹیکس تو دینا پڑے گا۔ تو گورنمنٹ نے یہ جو جتنا کچھ کیا ہے یہ انہی لوگوں کے لیے کیا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ٹیکس نہ دینے والوں پر 15 پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن میں سے 5 ابتدائی طور پر لگائی جائیں گی۔ جائیداد، گاڑیوں، بین الاقوامی سفر، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر پابندیاں شامل ہیں۔ حکومت نے جدید مشین لرننگ اور الگوریتھمز کے ذریعے نان فائلرز کی شناخت کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر ایسے افراد کی نگرانی کی جائے گی جن کی آمدنی ان کے لین دین کی مقدار کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ ابھی آگے وہ میپکو واپڈا کی طرف جائیں گے، گیس کی طرف جائیں گے، بینک اکاؤنٹ میں ریسٹرکشن کر دیں گے کہ آپ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، بیرونی سفر نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس طرح کی جب پابندیاں ہوں گی تو لامحالہ جو نا بہتر یہی ہے کہ ویلن ٹائم اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کی جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال نان فائلر سے صرف 25 ارب روپے ہی فیس کی مد میں جمع ہوئے۔ صنعت کاروں نے بھی آٹو مشین کی حمایت کی ہے۔ تاہم اگر زراعت پر ٹیکس نہ لگا تو ٹیکس 2GDP تناسب جمود کا شکار رہے گا۔ نئی پالیسیوں کے تحت نان فائلرز کو روایتی بینک اکاؤنٹس کھولنے سے روکا جائے گا۔ اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کے لیے بھی ایف بی آر ملک بھر میں اہم داخلی مقامات پر آٹو مشین اور افرادی قوت کو بڑھا رہا ہے۔ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ رحیم یار خان میں چیمبر آف کامرس کے الیکشن کالعدم قرار، ڈی جی ٹی او کا دوبارہ پولنگ کرانے کا فیصلہ۔ ایگزیکٹو کمیٹی نیا الیکشن کمیشن بنا کر دوبارہ پولنگ کروائے گی۔ دوبارہ پولنگ کروائی جائے گی۔ رحیم یار خان میں چیمبر آف کامرس کے الیکشن کالعدم قرار، ڈی جی ٹی او کا دوبارہ پولنگ کرانے کا فیصلہ۔ ایگزیکٹو کمیٹی نیا الیکشن کمیشن بنا کر دوبارہ پولنگ کروائے گی۔ رحیمیہ خان میں چیمبر آف کامرس کے انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ 14 ستمبر کو الیکشن میں پولنگ کے دوران بیلٹ بکس توڑے گئے تھے۔ الیکشن کمیٹی کے چیئرمین محمد عارف اور ممبر ذکاء اللہ چیمہ نے الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے دوبارہ سے ری الیکشن کرانے کا فیصلہ دیا تھا۔ تیسرے ممبر شفقت حسین نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ چیمبر الیکشن کو ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن میں چیلنج کیا گیا، جس کی سماعت کل ہوئی۔ ڈی جی ٹی او نے دونوں فریقین کے دلائل سن کر آج محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ڈی جی ٹی او نے بیلٹ باکس ٹوٹنے کے بعد بیلٹ پیپر کی سیکریسی آؤٹ ہونے پر الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا۔ نیا الیکشن کمیشن ری پولنگ کروائے، نئے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوں گے۔ ری پولنگ میں صرف پہلے سے کاغذات جمع کرانے والے ہی امیدوار ہوں گے۔ ڈی جی ٹی او کے فیصلے کے بعد خواتین ایگزیکٹو ممبران، صدر، سینئر نائب صدر اور نائب صدر کے انتخابات بھی ختم ہو گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ ڈیرہ غازی خان میں ایوان صنعت و تجارت کے انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل۔ کارپوریٹ کلاس کے 12 اور ایسوسیٹ کلاس کے 13 اراکین ایگزیکٹو کمیٹی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ ڈیرہ غازی خان میں ایوان صنعت و تجارت کے انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ کارپوریٹ کلاس کے 12 اور ایسوسیٹ کلاس کے 13 اراکین ایگزیکٹو کمیٹی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ ڈیرہ غازی خان میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ سابق ممبر ایگزیکٹو کمیٹی طارق اسماعیل کہتے ہیں کہ ایسوسیٹ کلاس کے 13 اراکین ایگزیکٹو کمیٹی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ 9 منتخب اراکین میں ذوالفقار علی خان نوسا، شیخ نبید حسین، شیخ محمد طاہر معراج، محمد سلیم خواجہ، مرزا محمد آصف اقبال، خلیل احمد خان، اشفاق سرور-دستی، شیخ محمد آصف، شیخ محمد ناصر سلطان، کاشف صدیق آرائی، خورشید اقبال ریند، احمد علی خان اور محتمہ شاہین سلطان شامل ہیں۔ ڈیرہ غازی خان چیمبر آف کامرس کا جو یہ الیکشن کا مرحلہ ہے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو ہمارے اراکین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، اور جو ٹاپ آفس بیئررز کا انتخاب ہے اس کے حوالے سے 29 تاریخ کو فائنل الیکشن کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا اور ان کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد
BOG की मीटिंग में बाकायदा तौर पर उनकी हलफ बर्दारी की जाएगी। कारपोरेट क्लास के 12 अरकान एग्जेक्टिव कमेटी भी बिला मुकाबला मुंतखब करार पाए हैं, जिनमें शाहिद हमीद खान चांडिया, सरदार अलील अहमद खान अलियानी, एम अनीस ख्वाजा, डॉक्टर मोहम्मद हारिस, ख्वाजा मोहम्मद अरशद, मोहम्मद औरंगजेब शेख, मोहम्मद जाहिद निज़ाम, मोहम्मद लतीफ़ खान पताफी, मरगूब अली भट्ट, अब्दुल्ला खान दुरानी, शेख फैयाज अहमद चौधरी, शहबाज यूसुफ शामिल हैं। तारिक इस्माइल का कहना था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के टॉप ऑफिस बैरियर्स के लिए इलेक्शन 30 सितंबर को होगा। टॉप ऑफिस बैरियर्स में हमारे सदर मुंतखब होंगे, सीनियर नायब सदर मुंतखब होंगे और नायब सदर मुंतखब होंगे। जो ये हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है, ये 25 अरकान पर मुश्तमिल होता है, जो कि हमारे आम मेंबरान में से 25 एग्जेक्टिव अरकान मुंतखब होकर आगे आते हैं। वो फिर सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर का इंतखाब करेंगे। तारिक इस्माइल के मुताबिक 9 मुंतखब इमरान की हलफ बर्दारी तकरीब की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोहित, डेरा गादी खान। कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटे में सोने की कीमत में 6,500 रुपए का इजाफा हुआ। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 कैरात सोना 2,84,000 रुपए फी तोला हो गया, जबकि 22 कैरात सोना 2,60,000 रुपए फी तोला है। सोना 3 लाख रुपए फी तोला तक जाएगा, जराए का ऐसा बताना है। आपको अपडेट करें, सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटे में सोने की कीमत में 6,500 रुपए का इजाफा किया गया। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 कैरात सोना 2,84,000 रुपए फी तोला हो गया, जबकि 22 कैरात सोना 2,60,000 रुपए तोला हो गया। सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटे में सोने की कीमत में 6,500 रुपए का इजाफा हुआ है। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 कैरात सोना 2,84,000 रुपए फी तोला हो चुका है, जबकि 22 कैरात सोना 2,60,000 रुपए फी तोला दस्तयाब है। सोना 3 लाख रुपए फी तोला तक भी जाएगा, जराए का कहना है। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। शहरियों के लिए आटा, चीनी और घी समेत दीगर अशिया खुरोनोश सस्ते दामों खरीदना ख्वाब बन गया। मुल्तान के अवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ से महरूम। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फ्राहम किया जाने वाला रिलीफ खत्म कर दिया गया। आटा, घी, चीनी, दालों समेत दीगर अशिया आम मार्केट रेट पर फरोख्त की जाने लगी। रिलीफ न मिलने के बायस अवाम यूटिलिटी स्टोर से मायूस हो गए। गवर्नमेंट ने वो BISP के जो कार्ड थे वो बंद कर दिए, उस वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। अब चीनी का रेट 153 रुपये है, घी का रेट 440 रुपये है और मार्केट में रेट कम है, यूटिलिटी स्टोर पे ज़्यादा है। रिलीफ खत्म होने के बाद 10 किलो आटे का थैला 1,500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। घी की फी किलो कीमत 440, जबकि चीनी 153 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। आवाम के लिए महंगे दामों राशन खरीदना मुश्किल हो गया। हाँ, रिलीफ था गवर्नमेंट की तरफ से। अब कस्टमर इतने परेशान है। घी, चीनी पे इन्होंने सब्सिडी दी थी आटे पे, तो वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। अब आटा तो स्टोर में मिल ही नहीं रहा, क्योंकि आवाम जो है बहुत परेशान है। वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, पैसे घी, चीनी पे पहले जैसे डिस्काउंट दी थी तो वैसे बहाल ही करें। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की कीमतें कम की जाएं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। अवाली को तजावुजात से पाक करने का मिशन है। जिला इंतजामिया ने तजावुजात कायम करने वालों को नोटिस जारी कर दिए। तजावुजात खत्म न करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। मियां वाली इंतजामिया शहर को तजावुजात से पाक करने के लिए मुतहरिक चीफ ऑफिसर जिला कौंसल साजिद महमूद का कहना है कि दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बलोखैर रोड के दुकानदारों को नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। मेन बाजार के दुकानदारों ने 2 दिन में तजावुजात खत्म करने का वादा किया है। अगर तजावुजात का खात्मा न किया गया तो सख्त ऑपरेशन होगा। तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की खुसूसी हिदायत पे, खालिद जावेद गुराया साहब DC मियां वाली, उनकी खुसूसी हिदायत पे जारी और सारी है। मेन बाजार वाले जो दुकानदार हजरात हैं उन्होंने खुद ये कमिट किया है कि हम एक आध दिन में अपनी तजावुजात खुद ख़त्म कर दें। अगर वो नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह उनके खिलाफ भी इसी तरह वता खैर रोड वाला ही ऑपरेशन इसी तरह का होगा। चीफ ऑफिसर साजिद महमूद का मजीद कहना था कि तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन मरहलावार किए जाएंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी सूरत मुआफी नहीं दी जाएगी। कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ है कि वता खेल चौक तक ये महदूद होगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमने मेन बाजार में भी नोटिस सर्व कर दिए हैं, हमने बलोखेर रोड पे भी और दीगर हिस्सों में जहाँ जहाँ तजावुजात हैं उनको पहले हम नोटिस सर्व कर रहे हैं, ताकि कल किसी का अखलाकी तौर पर या कानूनी तौर पर किसी का एतराज़ ना हो।
साजिद महमूद का कहना है कि तजावजात के खात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया भी मुतहरिक हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियां वाली। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस ने मॉडल रोड्स बना दिए, लेन और लाइन की पाबंदी लाजमी करार। मोटरसाइकिल रिक्शा अपनी लेन में चलेंगे, बड़ी गाड़ियां अपनी लेन में चलेंगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। ओलिया में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस ने शहर में मॉडल रोड्स बना दिए। मॉडल रोड्स पर लेन और लाइन की पाबंदी लाजमी करना होगी, वरना चालान कटेगा। पर 3 मॉडल सेक्टर बनाए गए हैं इब्तदाई तौर पर। एक मॉडल 1 सेक्टर जो KFC चौक से कचहरी तक है, और दूसरा हुमायूं रोड है जो 9 नंबर से दौलत गेट की तरफ जाता है। तीसरा जो है मॉडल रोड वो हमारा बना है 9 नंबर से 6 नंबर तक। ये इब्तदाई तौर पर हमने इन पर लोगों को अवेयरनेस, आगाही, लेन एंड लाइन और इन्फोर्समेंट के हवाले से ताकीद कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि विदाउट हेलमेट जो है वो इन रोड से ना आए। मॉडल रोड्स पर मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा ड्राइवर्स अपनी लाइन में रहेंगे, बड़ी गाड़ियां अपनी लाइन में चलेंगी। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम से हादसात में कमी आएगी और ट्रैफिक भी जाम नहीं होगी। हाथ में बहुत कमी आएगी। ये बहुत अच्छा काम किया है वार्डन ने और वज़ीर आला पंजाब ने। इससे नुकसान होने से बचेंगे। पहले बहुत ज़्यादा नुकसान होते थे, लेकिन जब से ये और हेलमेट बहुत जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस मॉडल रोड पर कवानीन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्तान में मॉडल रोड बनने से हादसात में काफी हद तक कमी आएगी। शहरी जो हैं वो अपनी लाइन में रहकर मुख्तलिफ हादसात से जो है वो बच सकते हैं। कैमरामैन जैन के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। खस्ता हाल सड़कें मुल्तानियों का मुकद्दर बन गई। BCG चौक 3 साल से टूट फूट का शिकार है। चौक के कासिमपुर रोड की बदहाली मुसाफिरों के लिए परेशानी बन गई। शहर औलिया का अहम दाखिली रास्ता तामीर न हो सका, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मुल्तान की बेशतर सड़कें खस्ता हाली का शिकार। BCG चौक का कासिमपुर रोड भी 3 साल से इंतजामिया की नजरों से उजल। सड़क की टूट फूट के बायस राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। ताजरों का कहना है कि ये शहर का अहम दाखिली रास्ता है और कारोबारी मरकज भी है। सड़क की खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और कारोबार ठप होकर रह गए हैं। 3-4 इलाकों को इंटरेस्ट हो रही है। मुजफ्फरगढ़, बावलपुर को इंटरेस्ट हो रही है। जो शहर में जाना चाहेगा निश्तर या कार्डियोलॉजी, वो यहीं से, मरीज भी यहीं से गुजर के जाएगा, और जिसने कोई खरीदो फरोख्त करनी है वो भी यहीं से गुजर के जाएगा। सेकेंडली, मैं वजीर आला मरियम नवाज साहबा से कि जो लाहौर पे तवज्जो दे रही है, वो मुल्तान शरीफ जो औलिया कराम का शहर है, जो कि पुराना तारीखी शहर है, इसको भी तवज्जो दी जाए। आज तकरीबन 5 साल हो गया है यहाँ के MNA, MPA, सेनेटर्स यहाँ के, उसके बावजूद इनका तवज्जो दे ही नहीं रहे। खुदारा कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा आसानिया होगा, तब आप इसके ऊपर तवज्जो देंगे। आप कह रहे हैं कि वायलेंस हो, एहतजाज हो, लड़ाई झगड़ा हो। मैं कह रहा हूँ अगर आप इसके ऊपर नहीं तवज्जो देंगे तो हमें यही है, दुकानें बंद करके इसको, रोड को ब्लॉक कर देंगे। शहरियों का कहना है कि गर्दो गुबार के बायस सांस की बीमारियां फैल रही हैं। तलबा का कहना है कि यहाँ से गुजरना खतरा से खाली नहीं। हादसात की शरह बढ़ गई है, मगर इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। रश पड़ जाता है यहाँ पे, सुबह जाते हुए तंगी हो जाती है, आमने सामने लोग आ जाते हैं। ना यहाँ पे जाने का कोई सिस्टम है, ना आने का कोई सिस्टम है। सारे अपनी मर्जी से जहाँ दिल करे वहाँ जा रहे हैं। रोड टूटने की वजह से गाड़ियाँ भी खड़क जाती हैं सारी यहाँ जाने की वजह से। शहरियों ने आला हुकाम से BCG चौक से मुलहक्का रोड की फौरी तामीर और मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ सिद्दीक के साथ शकीन सुल्तान, रोही, मुल्तान। खानपुर में बासर अफराद ने कब्रिस्तान की अराजी पर दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई न होने पर नवाही चक 22 के सैकड़ों अफराद का एहतजाज। असिस्टेंट कमिश्नर फैज फरीद ने नोटिस लेकर कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। खानपुर में कब्जा माफिया बेलगाम। बासर अफराद ने चक 22 में कब्रिस्तान की 2 एकड़ अराजी पर दूसरी बार कब्जा कर लिया। पुलिस 15 पर इतलाक के बाद भी कार्रवाई न कर सकी। चक 22 के रहायशी मोहम्मद मुजाहिद की ज़रे क़यादत सैकड़ों अफराद ने बल्दिया चौक से DSP ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर मोहम्मद नाजिक अली वगैरह ने अदालत से स्टे ऑर्डर लेकर कब्रिस्तान की सरकारी अराजी पर कब्जा शुरू कर दिया है। बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही।
कब्रिस्तान पे बार बार वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पहले इंतजामिया ने कब्जा करवा के दिया है, वागजार करवा के दिया है। अब कल से दोबारा वो छपरे और वो जानवर उन्होंने बांध लिए हैं। पक्के मकानों की तैयारियां वो कर रहे हैं। हमने बार बार पुलिस को इन्फॉर्म किया है, 15 पे कालें की हैं, पर अभी तक पुलिस ने जो भी एक्शन नहीं लिया। अब एसी साहब के ऑफिस में हम एहतजाज करते हुए हैं। एसी साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि उन पे ऊपर FIR डलवा कर मुलजमों को कैफरे करतार तक पहुंचाएंगे। जो बाईचक में कब्रिस्तान के ऊपर जो हमने वागजार कराया था ना, जो रकबा, उसके ऊपर जाम बरादरी ने दोबारा फिर शुरू कर दिया। उसके लिए हमने 15 पे कॉल की, हमारी कोई सुनी नहीं गई। हम यहाँ पे एसी के पास आए हैं कि इसने यकीन दिलाई की है कि हम इसका आपको एक्शन लेके देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर फैज फरीद का कहना था कि चंद रोज पहले कब्रिस्तान की अराजी कब्जा माफिया से वागजार करवा दी थी, जिस पर आज दोबारा कब्जा की इतला है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। इंतजामिया के नोटिस लेने पर अहले इलाका ने एहतजाज खत्म करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर फैज फरीद का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल, रोही न्यूज, खानपुर।